Our job profile is such that nobody comes to us in their hours of happiness or comfort. Correct. Whenever there is a discomfort, distress, an unfortunate event has occurred in your life, then only you approach the police. Policing is a very negative kind of job. There were threats for working good? Oh yes, there has always been. आप कोई बहुत गंदा सा केस देख कर आते हैं, you see the victim, you talk to the victim, you are shaken to the core as a woman. और फिर आप घर में आते हैं तो मैं तो मतलब बच्चे को दबा के करके ही रात भर बैठी रहती थी. अगर मदर ही अपनी बच्चे को कंपार्टमेंट्स में बंद करने लगेगी तो फिर उस बच्ची को उड़ने की जगह कौन देगा? यू नो, आई हैव कम अक्रॉस सच सर्वाइवर्स जिनको अगर आई बीइंग अ वुमन अगर मैं उनका हाथ छू लूँ तो दे आर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड कि किसी ने छू लिया. You know, unfortunately we do not have any wives back at our home who can look after us. पुलिस वालों को कभी देने वाला नहीं माना जाता. You know, unfortunately. Hi Lakshmi ma'am, welcome to Namaskar. After Hours Season 4 powered by Catch. Thank you so much for your time. मतलब आप मुझे ऐसे लगता है कि इतनी सारी जो young girls and not just young girls, you know, for young boys उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है. एंड Thank you आपके so जो much. लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स हैं वो तो मतलब खैर खत्म ही नहीं होते. जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगता है कि जो वो एक स्टैंडर्डाइज होता है ना, जो शर्मा जी का बेटा है शर्मा जी की बेटी वाली, के बस सारे पेरेंट्स बोले ऐसे बन जाओ वैसे कुछ आपकी हिस्ट्री रही है. तो I have been fortunate enough. God has been kind. एंड यू बीन हार्ड वर्किंग ऑल्सो. Ah, yes. Hard work always keeps you in good stead. Yeah. But ma'am, how are you feeling today? Oh, it's good to be here. It's a good opportunity for me to also relax and have an opportunity to chat about. That is a rarity and luxury in my life. I know. So I more than welcome this opportunity. Thank you so much for your time. And I know that, you know, especially in the life of someone like you, who is like leading the sort of, you know, justice of a state. What is it like? What is every day like for you? In our life, every day should be measured by what we are doing throughout the day and what results we have obtained by the end of night. Number one. Number two, our job profile is such that nobody comes to us in their hours of happiness or comfort. Correct. Whenever there is a discomfort, distress, an unfortunate event has occurred in your life, then only you approach the police. So in that scenario, if we are able to render any help, any assistance, give out some justice, help out someone, address to their grief, give them some hope, then I think a job is well done and a day is well spent. But what happens on days when you feel like आज जो accomplish करना था वो नहीं हो पाया? मेरा थंब रूल है कि आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि रात में आपको जितने भी घंटे की नींद आए, अच्छी नींद आए. अगर किसी दिन ऐसा होता है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो by evening I start feeling very restless. I need to do something. So that night is spent in thinking about what went wrong today and what can be done tomorrow. So the sum total is कि every day gives you an opportunity in this kind of job whereby you can give some assistance to someone. बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें नॉर्मल रूटीन कोर्स में जनता की मदद हो जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे सिस्टम में कभी ना कभी कुछ ऐसे लैकुने रह जाते हैं जिसकी वजह से या तो सिस्टम बहुत इनसेंसिटिव हो जाता है या सिस्टम को लगता है कि इस तरह के पिटिशंस रोज आते हैं तो ठीक है कल देख लेंगे परसों देख लेंगे. तो टाइम बाउंड रिवर्सल ऑफ ग्रीवांसेस इज वेरी नेसेसरी इन आवर सॉर्ट ऑफ वर्क मैनेजमेंट सिनेरियो. तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि ये जो आपका ग्रीवांस रिवर्सल है दैट शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी. नंबर वन. नंबर टू, हमारे वहीं से बहुत सारे बड़े काम निकलते हैं. तो छोटी शुरुआतों से अच्छा काम हो जाए, बड़ा काम हो जाए, इसकी गारंटी रहती है. तो मैं इसी पर फोकस करते चलती.
मैम मुझे ना बहुत, जब हम पढ़ रहे थे आपकी हिस्ट्री के बारे में, तो आपने इंजीनियरिंग करी है, उसमें भी मेरे ख्याल से आप गोल्ड मेडलिस्ट थी। फिर आपने एमए किया सोशियोलॉजी में। फिर आपने कैसे सोचा ये करके कि आप आईपीएस में आएंगी? देखिए, इंजीनियरिंग हमने की थी क्योंकि थोड़ा सा भगवान की दया से पढ़ने लिखने वाला दिमाग था। और बचपन से ही मेरी यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने की इच्छा थी। I knew that competition was very tough, so my parents guided me कि you should have an alternate career at your hand. Number one. ये क्लियर नहीं हुआ तो? हाँ, इसकी they had some doubts. I never had any doubt. So I did engineering. I chose mechanical because I was very interested in automobile engineering, and I had been offered a good job by then General Motors also. But I had already appeared for UPSC, cleared the prelims, so I waited, and with God's grace, my hard work paid off. MA मैंने नौकरी में आने के बाद किया है, because I think that this is one kind of job where it is very routine process for everyone, and you need to grow and evolve. So if you keep studying, and not just things related with policing, you should have a very broad outlook, very broad overview. What is happening in the society? Why is it happening? So that you can address the root cause of any problem. So I keep studying, and it is for this only that I did a मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, बिकॉज सोशियोलॉजी की जब पढ़ाई की तो उसके बाद फिर समझ में आया कि जनता से और आप कैसे डील कर सकते हैं, और जनता में बहुत सारे आपके साइलेंट फैक्टर्स और इक्वेशंस होते हैं जिसको किसी सोसाइटी से डील करने के लिए आपको उसको समझना ज़रूरी होता है। तो सोशियोलॉजी ने मुझे वो आउटलुक दिया है, और मेरी आज भी कोशिश रहती है कि कुछ पुलिसिंग के इतर भी पढ़ा जाए और अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए। मुझे ऐसे लगता है कि एक्चुअली इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान ही होती है। हाँ, यस, दैट हेल्प्स यू इवॉल्व नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल but also as a officer, because if you are not keeping in sync with what is happening across you in the society, if you are not upgrading yourself, how can you expect that the system will be upgraded automatically? You will have to usher in changes, and for that, bringing in that change in the system of functioning of a very bureaucratic setup, you need to have some positive outlooks. You need to have that kind of in-depth knowledge of what you are about to do. अधकचरे ज्ञान से कोई चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। सिस्टम में अगर आपको ग्रोथ लानी है, पर्सनालिटी में आपको अगर एवोल्यूशन लाना है, तो आपको पढ़ाई करना जरूरी है। अग्री, मतलब मैं भी काफी पढ़ा हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी इधर किताबें देखी, सेपियंस जैसे, जो मैं भी पढ़ती हूँ। तो आई फाइंड इट सो फैसिनेटिंग दैट रीडिंग इज अ बिग पार्ट। रीडिंग इज अ वेरी गुड हॉबी ऑफ माइन. I write also, and reading keeps me senile. You know, it's a very negative environment. Policing is a very negative kind of job. All day long, you are dealing with certain kind of problems only. So when you read, you keep your mind open. You have a positive outlook. You have a psychological in-depth analysis of situations and persons, and thereby you can also think about what to do next. If an officer is not a thinking man, I keep telling these to all my subordinates, if you're not thinking, you are not evolving as an officer. Why? Because if you do not think, then you cannot bring certain changes, out of box solutions. Not every problems can be addressed by a set parameters of standard operating procedures कि ये चीजें कर लो, इसे तुम्हें solution मिल जाएगा। कई बार हमें किसी बहुत complicated situation से deal करने के लिए out of box think करना पड़ता है। उसके लिए आपको you need to have a very broad spectrum of knowledge. Critical thinking also. Critical thinking is very, very necessary. Critical thinking is very necessary. Analytical skills are very necessary for an officer to grow. ऐसी कौन सी मैम 3 किताबें जो आप recommend करेंगे जिनसे आपको इंसानों की पहचान better हुई है? This is a very, very long and lengthy discussion. People have different kind of interest, but there are certain stories which hook you up. As you have said, Sapiens, it's a very nice book. Masterclass, yeah. It's a masterpiece. You can go through, and you can think about why history has happened and in what direction history has happened. Once you think about history and once you think about why it has happened, then everything
becomes clearer in hindsight. Number one. Number two, there was this book which my daughter recommended to me. It's a pure child fiction, but it has magic in it. And the book has been awarded by New York. It has been on the New York Times bestseller also. And the book is named as The Girl Who Drank the Moon. The Girl Who Drank the Moon. The Moon. Okay. There are so many subtle references to injustices meted out in a society. And the society can close itself against those injustices and be into an utopian bubble. Yeah. Or you can reach out, break the bubble, and think why injustice has been meted out and what can be done to render that injustice into a fairly justifiable system. So this book teaches hope to children. This book teaches about fighting injustice in whatsoever place or position you are in the society. And this book teaches the children to think about marginalized sections of the society. Wow. I will So read this book is a magical book, and that is why this has given me, it's a very short, very lively, very magical children book. But once you go through, then you think that yes, here is what can be done. So that way, that book is very close to my heart. And when we entered into the bureaucracy, the book was Everybody Loves a Good Drought by P. Sainath. It talks about endemic problems faced by the Indian bureaucratic setup and how development occurs, but at the bureaucratic cost. So that book teaches about the bureaucratic cost and how to avoid those bureaucratic costs. That is a good book, and every officer should read and say how that cannot happen in my area of functioning. Ma'am, what is the cost that you have paid for being in the position that you're in? मतलब आपकी लाइफ में ऑब्वियसली आपने यहाँ पहुँचने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करे ही होंगे, बिना उसके तो नहीं पहुँच सकते. मतलब 33rd रैंक, फर्स्ट वुमन कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ यूपी, आपने कोई तो प्राइस पे करी होगी यहाँ पहुँचने के लिए. I think everybody's life is a series of successes, failures and compromises. किसी भी लाइफ में अगर मेच्योरिटी है तो कॉम्प्रोमाइजेस बट नेचुरल हैं, वो होंगे ही होंगे, वेदर इट इज फॉर एनी जेंटलमैन, वेदर इट इज ओनली फॉर एनी विमेन. सभी के अपने डुअलिटीज होती हैं, डायकोटमीज होती हैं लाइफ में. सभी के पास वो चौराहे आते हैं कि इस रास्ते जाना है, कि इस रास्ते जाना है, और आपकी चॉइसेस बताती हैं कि हाउ मच यू हैव मैच्योर एज एन पर्सन. तो सभी के पास एक कॉस्ट रहता है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस होने पर मुझे लगता है कि ये कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है. आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू कीप अ वर्क लाइफ बैलेंस इन माय लाइफ, एंड एज आई हैव ग्रोन आई हैव चेंज्ड माय प्रायोरिटीज इन लाइफ. और सिंगल लिविंग थंब रूल जो होता है वो बहुत मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हैव अ गुड लाइफ, स्लीप. When you are in your family space, you should be very happy, very content. ठीक है. Compromises होते हैं, sacrifices होती हैं. This job is very labor intensive. Number one. Physically and mentally tiring होता है. You have to go beyond your human endurance limit sometimes. You have to deal with umpteen number of factors and equations and stress, pulls and pressures. अभी तो fortunately the scenario in UP and in the country is very good. Every bureaucrat can work in a very positive frame of working. And there are no threats for working good, doing good. There were threats for working good? Oh yes, there has always been threats for doing good. पर अच्छा काम करने के लिए क्या threat होगा मैम? Good is a very relative subject. You should realize that what is good for the society or what is good for an individual may not be good for another society or another individual. Number one. What is justice in my eye, in the eye of law, may not be agreeable to certain sections of the society who think that they are untouchable by law.
सो ऐसे भी सिनेरियोज हमने देखे हैं और ऐसे भी सिनेरियोज हमने फेस किए हैं, एंड देन यू हैव टू थिंक, यू हैव टू पुट इन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ टाइम, डबल अमाउंट ऑफ brain power to come up with a solution which is rendering justice to the needy, number one. And you can circumvent the objections put up by certain sections of society और आपका काम हो जाए. तो उसके लिए आपको बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल टाइम देना पड़ता है और आप फिर अपने प्राइवेट लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं. बट आप अभी जैसे बोल रहे हो कि वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक करना हैज हेल्प्ड यू not perhaps feel as unsettled with the compromises you've had to make. But आपके जॉब के घंटों के साथ कैसे हो सकता है कोई देखिए बैलेंस? उसमें होता क्या है, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी वर्किंग women in this country. It's not easy to come out of that bubble and step out of your house, make a name for yourself, make an independent stand for yourself in your life and earn recognition from all. There will be certain sections of people who will always be dissatisfied with you. इसीलिए working women में guilt consciousness बहुत ज़्यादा होती है. You know, if you sacrifice on your family time, on your personal requirements, you feel guilty towards your family, you feel guilty towards your spouses and children. If you are compromising on your professional commitments, you are not able to make out, or you are expected to be in unfortunate hours of service, then you feel guilty towards your profession also. So that guilt consciousness will always be there. So it's better to have a very healthy frame of mind, keep your perspective very clean, keep your perspective changing, कितना हमको कहाँ पे टाइम देना है, कितनी ज़रूरत है. एंड वर्क लाइफ बैलेंस यही होता है कि आप जब भी रहें तो थोड़ा सा क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करिए. आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके स्पाउसेस को ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर एन एब्सेंट फिगर इन दैट फैमिली. नंबर वन, इट्स डिफिकल्ट टू अचीव बट इट इज अटेनेबल. तो उसके लिए करना क्या है कि जॉब मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है. टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और आपके दिन के क्वार्टर्स डिफाइन होने चाहिए कि हमको इस दिन के क्वार्टर में ये काम करना है. Fortunately, God has blessed us with both lobes of mind working together. So we are able to multitask. Yeah. So once we are able to multitask, you only have to keep reminding yourself that this is also required. बहुत बार होता है working professionals, especially in our kind of job, वो जॉब को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को डाउन कर देते हैं. लेकिन मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है. जॉब आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी मेहनत से आया है, ईजी नहीं है. लेकिन उसके संग आपको अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने फैमिली को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है. मैम, पर आपको ऐसे नहीं लगता कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि वर्क लाइफ बैलेंस का सवाल हम पूछते सिर्फ औरतों से ही है? आदमियों से कभी किसी ने वर्क लाइफ बैलेंस का सवाल ही नहीं पूछा. मेरी समझ में ये थोड़ा सा मिसनोमर है. वर्क लाइफ बैलेंस की उनको भी जरूरत रहती है, गिल्ट कॉन्शियसनेस उनको भी रहता है. इट्स जस्ट दैट कि फीमेल्स में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उनको फील ज्यादा होता है. और मेल्स थोड़ा सा अपने को सेंसिटिविटी बैरियर प्रूफ बना लेते हैं, इसलिए उनको लगता है कि साहब वो कोई बात नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. नंबर वन. नंबर टू, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें एक मेल सेंट्रिक रोल डिफाइंड है, मेल ओरिएंटेशन डिफाइंड है. तो मेल्स जो काम करने जाते हैं, जेंटलमैन जो काम करने जाते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि घर में एक मेरी माँ है या वाइफ है जो घर को संभाल लेगी. Unfortunately, we do not have any wives back at our home who can look after our house. तो हम लोगों के संग ये थोड़ा सा एक लखना जिंदगी भर चलता है. नहीं, यू नो, पता नहीं कोई रील या मीम ही देख रही थी, वो बोल रहे थे कि एक वर्किंग वुमन है, वो बोल रही थी आई विश आई हैड अ वाइफ बैक होम. मतलब मैं भी उतने ही घंटे काम में लगा लेती अगर मेरे पास भी होती बीवी. जो मेरे हस्बैंड के पास बीवी है वो मुझे भी कोई मिल जाए तो मेरा भी टाइम देखिए ज्यादा मिल जाएगा. मेरा अपना मानना है, वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर जॉब and your family life, you are in a well positive frame of space. Why? Because if you're not happy other ways, then that will be taking a toll on your work performance. Correct. Number one. Number two, you have two choices. Either you can go on cribbing, आज ये नहीं हुआ, आज बच्चे का ऐसा नहीं हुआ, या
जॉब में ऐसा नहीं हुआ, either you can go on cribbing. मेरा माइंडसेट दूसरा है, मैं क्रिब नहीं करती हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में क्रिब नहीं करती हूँ. There have been days and days where I have not returned home and without taking a bath or without eating anything, and we have just been in the field. ठीक है, I have not cribbed even then. Why? Because coming to this job was my choice. I do not regret my choices. So the day you stop regretting your choices, you are happy in your own space. Yeah, the day you stop regretting your choices, Yes. you won't be dissatisfied one day. If I chose to have a family, if I chose to have children, that I have done for myself, Yeah. for my happiness, for the joy in my life. So I do not regret even that. It's a great mindset to have. It is good. Yeah. It is always beneficial for working women. I feel that way. You should not regret your choices. If it has been a conscious choice, stick to that. And you will feel good in your space. How does your daughter feel about who you are today? I am blessed with a very balanced, kind-hearted, non-cribbing and joyful child. There have been instances where she must have missed me. I have always tried to become a very integral part of her life. Me and my husband both have compromised, and for a single day we have not left her alone. Either me or my husband have always been with her. Number one. Number two, we do not go on any vacationing, holidaying, or enjoyment without her. That we have done. And she has been a part of all our ups and downs. But I do feel that she became mature well beyond her years. And had I been a hands-on mom or mom at home, so she would have been more naughty, more childish, throwing more tantrums, more pranks. That I miss. But fortunately, she is a very balanced child, and I do not have to stress more from her side. But one thing which is very heartwarming for me is that when she was in nursery, they were asked, what do you want to become? They had to say a few lines about what you want to become when you grow up. And every child has a role model. So, they had to come prepared for that. So, many children were speaking about their role models, जो भी उनके घर पर सिखाया गया होगा. मैं नहीं थी, तो मेरे बच्चे को वो कुछ सिखाने वाला नहीं था. She went and she said, I want to become like Mama. So first people thought that, okay, she is taking her mother as a role model. Then she clarified, not Mama, but Mama policewoman. And I see her doing good. I see her leading people and solving their problems. So I want to become like Mama. So that was that day I thought I have earned laurels. These medals paled before that admiration. If you become a role model in your own child's eye, I think that is a life well spent. 100%. And also जो आप गिल्ट की बात कर रहे थे, तो कि you're not there all the time. हाँ, गिल्ट रहेगा, but I think वो थोड़ा ऐसे मोमेंट से solidify तो हो जाता है ना कि कि वो इंस्पायर भी हो रही हैं आपको देख के. That is there. As a mother of a daughter, I am usually torn कि हम बेटियों को दो तरीके की दुनिया से इंट्रोड्यूस करते हैं. जी. एक जिसमें हम उनको बोलते हैं कि यू डिजर्व टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब आप कपड़े वैसे जो आपका मन करे, गर्मी है तो शॉर्ट्स, जैसे आप जाना चाहे वैसे जाए, आप को उतना ही हक है रात को बाहर जाने का जितना एक आदमी को हक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये एक स्कूल ऑफ थॉट होता है. और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट होता है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कि डोंट पुट योरसेल्फ इन डेंजर. आपने कैसे रेज किया अपनी बेटी को? देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो इसलिए होता है क्योंकि हम जिंदगी में पूरे करियर में समाज की जो गंदगी है उसको डायरेक्ट डील करते आते हैं. एवरी डे यू आर कमिंग अक्रॉस मर्डरर्स, रेपिस्ट्स, ईव टीजर्स, और उसका कहीं ना कहीं आपका एज अ मदर साइकी पर इफेक्ट आता है. आई एम श्योर. एंड आई हैव कॉन्शियसली ट्राइड कि ये साइकी पर इफेक्ट मेरे व्यवहार में तब्दील ना हो. It's very difficult to keep aside that police woman and that mother separate. हमारे उसमें समाज में, in our Indian society, daughters have always been very cherished, well protected, and given all kind of good feeling environment to grow up.
जिसकी जैसी भी हैसियत रहती है वो उस हिसाब से अपने बेटियों को अच्छे से अच्छे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कराना चाहता है। इसके साथ ही साथ क्या है, हमारी चूंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो हम विमेन को थोड़ा सा प्रोटेक्शन की नीड को मानते हुए थोड़ा सा उनको दबाने की भी कोशिश करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जब बच्चियां हमारे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर दुनिया में प्रवेश करती हैं तो वो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड रहती हैं, बिकॉज दे डू नॉट फील कॉन्फिडेंट इनफ और वेल इंडिपेंडेंट इनफ टू मेक नेसेसरी डिसीजन मेकिंग और टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। और हमारे जनरल माइंडसेट क्या होती है कि साहब वो आज पिता है जो प्रोटेक्ट करेगा, कल भाई है प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद हस्बैंड है जो प्रोटेक्ट करेगा। यू नो, वी आर ऑलवेज अ वेल एंडेंजर्ड एंड वेल नीड टू बी प्रोटेक्टेड स्पीसीज अराउंड। इसके लिए हमें करना क्या है, जो आजकल हम लोग बहुत सोसाइटीज में रैंडमली और बहुत तेजी से बदलते हुए सिनेरियो को देख रहे हैं, उसका सिनेरियो क्या है कि आपको अपने बच्चियों को ऐसी एजुकेशन देना है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उनमें आ सके। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट। आप जब अपने को सभी पैरामीटर्स पर अच्छा पाते हैं तो इनहेरेंटली यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी बताना है कि समाज में थोड़ी सी बुराइयां हैं और उससे निपटने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो भी आपको पार्ट ऑफ एजुकेशन दे देना चाहिए, जो गवर्नमेंट कर भी रही है। आप देखेंगे सभी यूनियन गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट के, उससे सभी पार्ट्स ऑफ करिकुलम में इसको अनिवार्य बनाया जा रहा है, जस्ट टू टेल द गर्ल हाउ टू फील प्रोटेक्टेड ऑल डे लाइफ ऑन देयर ओन। नंबर 1। नंबर 2, मेरा मानना है कि जब आप बच्चियों को इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी अर्निंग खुद कर सकें, इफ दे हैव मनी इन देयर हैंड दे विल बी कॉन्फिडेंट एंड decision maker all their life. So we should be arming our daughters with the capacity to stand independent even after we are gone and to be a decision maker all their life. Once they are confident enough to make good decisions, they will never suffer in life. उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो हमारा मानना है कि हमको अपनी बच्चियों को उस हिसाब से करना चाहिए। यस, देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई फील वेरी ट्रबल्ड। यू नो, आप कोई बहुत गंदा सा केस देखकर आते हैं, यू सी द विक्टिम, यू टॉक टू द विक्टिम, यू आर शेकन टू द कोर एज अ वुमन। और फिर आप घर में आते हैं तो मैं तो मतलब बच्चे को दबा के करके ही रात भर बैठी रहती थी, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू टैकल विथ वायलेंस दैट इज हैपनिंग अराउंड द सोसाइटी। बट उसका नतीजा यही होता है कि आपको मैच्योर होना चाहिए और आपके अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, इतना इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूंगी कि अपनी बच्चियों को कभी भी हिंड्रेंस मत समझिए। दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड दे विल फॉरएवर, ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, योर डॉटर्स विल बी अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर यू। जब वो सोर्स ऑफ जॉय हो तो उसको चेरिश करना चाहिए और उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि वो जिंदगी में सही और बुरे का एनालिसिस करके सही डिसीजन ले सके। Very well said. I will keep that in mind and take this with me. And you should be a very broad looking mother. अगर मदर ही अपनी बच्चे को कंपार्टमेंट्स में बंद करने लगेगी तो फिर उस बच्ची को उड़ने की जगह कौन देगा? जब होएंगे मेरे बच्चे तो मैं दिमाग में रखूंगी। पर मैम आप एक बात बताओ, अभी जैसे आपने बोला कि आप इतने हेनस क्राइम्स देख के ऑब्वियसली यू नो यू आर शेकन टू द कोर एज यू सेड, आप उससे कैसे डिटैच कैसे करते हो घर जाके? It's very difficult because I have been a sensitive person all my life, so it's very difficult. But then you should try to accommodate your sensibility into making pragmatic decisions in your professional area. मैंने हमेशा क्या किया है कि अपने अनुभवों को अपनी पुलिसिंग में आत्मसात किया है। I have assimilated that sensibility and sensitivity into my policing. That's why my brand of policing is very different from regular policing. People often आप बोलेंगे जिस सिचुएशन में वो ये सोचेंगे कि आप अरेस्टिंग कर लीजिए, डंडा चला दीजिए, मार के बंद कर दीजिए एंड आपकी पुलिसिंग वहीं पे खत्म हो गई एंड इट्स वेरी गुड पुलिसिंग। बाय एनी हॉलमार्क ऑफ पुलिसिंग दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। बट मैं उससे हमेशा बियॉन्ड जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी मुझे उसके बियॉन्ड ले जाती है। जब हमने इस तरह के हीनियस क्राइम अगेंस्ट वेरी स्मॉल 1.5 साल की बच्ची के संग, 3.5 साल की बच्ची के संग जब होते देखा, देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट व्हाट कैन बी डन एज एन
रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी। हमने उसमें क्या किया, काउंसलिंग शुरू करवाई। तब तक हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि बच्ची के संग होता है, बच्ची को एक ट्रॉमा होता है। हमारी पुलिसिंग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सेंट्रिक पुलिसिंग है अभी तक। हम इंसिडेंट को डील करते हैं, हम विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिसकी आज की जरूरत है। एनी मॉडर्न एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी में विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप विक्टिम को उसके ट्रॉमा का निदान नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी पुलिसिंग अधूरी है। दिस इज माय फिलॉसफी ऑफ पुलिसिंग। वेरी वेल सेड, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैंने इसीलिए ये शुरू किया था कि उस समय काउंसलिंग शुरू कराई, नॉट ओनली मेडिसिनल काउंसलिंग, लीगल काउंसलिंग, बल्कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द विक्टिम। उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कराई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब आपकी डॉटर किसी एक ट्रॉमा से गुजरती है तो पेरेंट्स का भी बिहेवियर में चेंज आते हैं, पेरेंट्स के भी माइंडसेट में सटल चेंजेस आते हैं जिसको वो रियलाइज नहीं करते हैं, और वो भी उस ट्रॉमा को जीते हैं। उनको भी काउंसलिंग की जरूरत रहती है। आज तो फॉर्चुनेटली वी आर रनिंग वेरी गुड प्रोग्राम्स वेयर बाय वी आर एबल टू काउंसल सच रेप सर्वाइवर्स, whether they are of very young age or whether they are of appropriate ages। लेकिन वो हमने जब शुरू किया था उसका पर्पस यही था, और आज भी हम इसको करवाते हैं। बट मतलब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैसेट है, एंड आई थिंक ये जो आप किताबें पढ़ते हो या ये जो आपने एमए करा है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को ये पर्सपेक्टिव से तो नहीं देखा। मैंने आज मतलब मैंने जितने भी लोगों से बात की है, हमारी जो पुलिसिंग की ट्रेनिंग होती है, व्हाट वी आर टॉट इज दैट, एज आई सेड, आवर पुलिसिंग हैज ऑलवेज बीन अ पुलिसिंग ड्रिवन बाय द सोसाइटी, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी और लॉ सिस्टम क्या कहता है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि एक आपका इंसिडेंट हुआ है, आप उसको डील कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको पकड़ लीजिए और चार्जशीट कर दीजिए और फिर कोर्ट में भेज दीजिए, उसको सजा हो जाएगी। ये हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है। लेकिन इसमें कहीं भी विक्टिम के लिए एक लाइन नहीं है जिसमें हम कह सकें। आज तो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से जो है बच्चियों को सहायता मिल जाती है, उनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से काउंसलिंग सरकार प्रोवाइड करवाती है, उनको रिहैबिलिटेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यू नो, आई हैव कम अक्रॉस सच सर्वाइवर्स जिनको अगर आई बीइंग अ वुमन अगर मैं उनका हाथ छू लूँ तो दे आर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड कि किसी ने छू लिया, यू नो, एंड दे कैन नॉट से, दे हैव नो एवेन्यू, नो चैनल विथ whom they can share those kind of thought processes। उस बच्चों को उस समय वो एक हाथ देना बहुत ज़रूरी है। और हम जहाँ भी हैं, अगर हम जिम्मेदार ऑफिसर हैं, हमें किसी भी नीडी को, किसी भी मदद मांगने वाले को उसकी आवाज़ सुनना ज़रूरी है, वो हाथ पहुँचाना ज़रूरी है। तो हमारी पुलिसिंग बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पुलिसिंग होगी और सोसाइटी में वेल लॉडेड होगी। आप क्या गुडविल जनरेट करेंगे, लोग आपके संग जुड़ेंगे। आपका लीडरशिप स्टाइल कैसे इवॉल्व हुआ है मैम ओवर ऑल दीज इयर्स? My leadership style has always been people centric। I do not have a very fixed compartmentalized style of functioning। It changes according to the scenario। आप रूरल परिवेश में हैं तो it's very impromptu। बीच में है, जनता के बीच में है, कैसे डील करना है वो अपने आप ही आ जाता है, उसके लिए कोई बहुत बैकटो चैनलिंग करने की जरूरत नहीं। और मेरा अपना मानना है कि आप अगर, हमारे यहाँ समाज में क्या है कि आपको एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं, और आज भी उनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में ज़्यादा है। खासकर आप जब गांव के परिवेश में जाते हैं, लोग आपको छूना चाहते हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां आएंगी जो छू के देखना चाहेंगी। मैं तो आपको बोल रही थी, आपको यूनिफॉर्म में देख के आई वाज सो इंस्पायर्ड। ऐसे मतलब किसी को देख के आपकी छाती चौड़ी हो जाती है कि यू नो, तो वो आईपीएस ऑफिसर्स का एक ऑरा होता है। लेकिन उस ऑरा को अगर आप जनता के पास ले जाएं, आप उनके बीच में जाके खड़े हो जाएं और उनको ये भरोसा हो जाए कि ये सिर्फ ऑरा ही नहीं है, ये काम करने वाला ऑरा है और आपको कुछ करके दे देगा, तो उससे क्या होता है, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, आप उनकी लॉयल्टी कमांड कर लेते हैं और फिर बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन में वही जनता आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ जाती है। मेरे संग बहुत बार ऐसा हुआ है, जब हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग के, आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 2000s, कोई बहुत एक्सेप्टेड
मॉडल्स नहीं थे और उसको एक्सेप्टेबल वे ऑफ पुलिसिंग नहीं माना जाता था, तब मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की थी। हम क्या करते थे, गांव-गांव में किसी एक ज़िले में थे जहाँ पे ज़मीनों को लेके बहुत मर्डर्स होते थे और उसमें जो है वो पुलिस जब पहुँचती थी, बट नेचुरल है, मर्डर हुआ, किसी को पकड़ के लेके जाएगी, तो पुलिस के खिलाफ बहुत आक्रोश होता था। तो अगर आप गाँव में जा रहे हैं तो नोबडी इज़ रेडी टू इवन लुक एट यू और टॉक टू यू। तो आप ऐसे उसमें पुलिसिंग कैसे करेंगे, बिकॉज़ देयर इज़ नो पीपल कनेक्ट। तो मैंने उसमें क्या किया था कि वंस यू आर इन दैट पोजीशन, आप अपने संग बाकी विभागों को लेके जाइए। हम वहाँ जाते थे, पुलिस के लिए कैंप लगाते थे, जिसकी जो शिकायत, हम गाँव में ही बैठ जाते थे, चारपाई पे बैठ जाते थे, मोढ़े पे बैठ जाते थे, कहते हम आज यहीं अपना ऑफिस लगाएंगे, जिसकी जो शिकायत है इस गाँव में यहीं ले आओ, यहीं से हम इसका शिकायतों को हल करना चालू कर देंगे। छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, किसी ने सुना नहीं, आप वहीं खड़े होके करवा दीजिए, आपने एक प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। फिर हम अपने साथ जो है डॉक्टरों की टीम ले जाते थे कि आज हम गाँव में मेडिकल चेकअप कराएंगे। बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनकी आईसाइट नहीं होती, तो उन्हें पता ही नहीं है कि आईसाइट हमारी कमजोर हो चश्मे गई की है। जरूरत है, इतने सारे लोगों को इंडिया में बहुत सारी पता ही नहीं है। वीमेन है जिनमें बहुत, हमने देखा था कि आयरन की डिफिशिएंसी होती Anemic. थी, एनीमिक होती थी, पानी गंदा होता था, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लोरीन की गोलियां बांट देना है। लेकिन जब आप ये सब छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं और वहां पे आप अपने संग करा देते हैं, मलेरिया का आप छिड़काव करवा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक अफसर है जो आती है तो कुछ दे के जाती है। पुलिस वालों को कभी देने वाला नहीं माना जाता है, अनफॉर्चुनेटली। So when I go, I try to bring all concerned NGOs से हम मदद मांग लेते हैं. I have never shied away from asking from help from anybody. अगर जिस एरिया में हम हैं, वहाँ की जनता की किसी समस्या के सोल्यूशन के लिए कोई भी हमको मदद करने को तैयार हो, वो मदद लेने के लिए हम हमेशा जो है उत्सुक रहते हैं. I have always helped out people. पीने का पानी नहीं, हमने ऐसी ऐसी जगहों पे बोरिंग कराया है जहाँ पे सरकारी विभागों ने कह दिया कि साहब यहाँ बोरिंग करके पानी नहीं मिलेगा. उनके लिए वो पीने का पानी बहुत बड़ी चीज है. मेरे लिए क्या है कि पुलिस का अपना वहां पे एक गुडविल जनरेट करने में वो मदद करता है. और अगर मेरे माध्यम से किसी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो उस माध्यम जरूर बनना चाहिए. दिस मस्ट बी एडिंग योर इन्फॉर्मेंट्स. यस, इन्फॉर्मेंट्स नहीं, गुडविल हो जाती. अब उस एरिया में अगर कोई दंगा हो जाए या कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो वो जनता कभी भी पुलिस के खिलाफ हाय नहीं करेगी. आप मौके पर पहुंच जाइए, पीपल रिकॉग्नाइज मी एंड पीपल रिकॉग्नाइज मी. वो कभी कोई किसी की हम बिटिया हो जाएंगे, किसी की हम दीदी हो जाएंगे, हमको मैडम बहुत कम लोग बोलते हैं. एंड आई ऑल्सो डोंट माइंड दैट. मुझे भी वो बहुत फॉर्मल पैरामीटर्स में मैं कभी काम नहीं करती हूँ. तो अगर जनता मुझे अपने जिंदगी का हिस्सा मानने को तैयार है, मुझे खुशी है कि वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती है, और मेरा फिर फर्ज है कि मुझे उसकी समस्या सॉल्व करनी चाहिए. मेरे पास आज भी ऑफिस में बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स लेके आते हैं जिनका पुलिसिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्हें ये भरोसा है कि वो मेरे पास आएंगे तो उसका कोई ना कोई हल हम उनको जरूर देंगे. They recognize you as a problem solver. Yes, being a problem solver, that is a good style of leadership functioning. Fair enough. And that is a good recognition. 100%. Yes, agreed. You know, you have been in an article, ma'am, called A Crusader Against Organized Crime. Yes. है ना? तो मुझे आपसे समझना है कि how much of your sort of policing is analytical and predictive, because I imagine predictive होने के लिए एक analytical bent of mind चाहिए, and how much of it is instinctive कि आप gut feeling से operate करते हो? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं. Technical background helps me into recognizing the right kind of technology that can be inserted into the system. Number one. Number two, आपको अगर ट्रांसपेरेंसी लाना है, वर्क फंक्शनिंग में एफिशिएंसी लाना है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत जरूरी है. Fortunately, both the state, central and the state governments are into technology, and they have been ushering into an era of genuine modernization into the police working. हमारे पास आज की तारीख में हम बहुत रिसोर्स रिच डिपार्टमेंट हो गए हैं, और कोई भी अगर हम नया प्रयोग करते हैं तो इट इज वेल अप्रिशिएटेड. तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम में इंसर्ट करना है, उसको लागू कराना है और उसको फंक्शनल बनाना है. हमारे सिस्टम में किसी नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक इनहेरेंट इनर्शिया होता है. लोगों को लगता है अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, इसको ऐसे ही चलने दिया जाना चाहिए. लेकिन जब आपको चेंज लाना है तो आपको वो थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन कराना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना बताना पड़ेगा. एक बार टेक्नोलॉजी सर्टेन हो जाती है, उसके बाद प्रिडिक्टिव पुलिसिंग इज वेरी इजी.
आपको एक रिएक्टिव पुलिसिंग से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ जाना है, तभी आप एक मॉडर्न सोसाइटी की मॉडर्न पुलिस बनकर उभरेंगे। आज की जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं, लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे आप चेन छिन रही है और पिछले कई वर्षों से छिन रही है तो ये रुकना चाहिए। आप कितनी बार भी चेन लुटेरा पकड़ के उनको दे दीजिए, दे विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि उनको हमेशा एक भय बना रहेगा कि यहाँ पे होगा। हमने आने के बाद जैसे नोएडा है, नोएडा इज अ वेरी हेवीली मेट्रोपॉलिटन एरिया। करेक्ट। यहाँ पे छोटा सा इंसिडेंस भी ये फीलिंग देता है कि पुलिसिंग बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए स्ट्रीट क्राइम को रोकना, ऑर्गेनाइज स्ट्रीट क्राइम को क्रैक डाउन करना, जड़ से खत्म करना, इट्स वेरी इंपेरेटिव टू इंस्टिल फीलिंग ऑफ गुडविल टुवर्ड्स पुलिस इन द माइंड्स ऑफ पीपल। जब हम आए थे तो सबने यही शिकायत की थी। आप आज की तारीख में फॉर्चुनेटली वी आर फाइटिंग इट बिल्कुल रियल ऑन अ रियल टाइम बेसिस। हमारे पास दिन में टाइम स्लॉट के हिसाब से, जगहों के हिसाब से हॉटस्पॉट्स की रैंकिंग आ जाती है, जहाँ पे हम दिन भर अपने पुलिसिंग के पैटर्न को बदलते हैं और उस हिसाब से हम अपनी अलर्टनेस रखते हैं कि रंगे हाथ कोई चीज हो जाए, पहले तो हो ही ना, और होते ही तो तुरंत पकड़ में आ जाए। उससे क्या हुआ है कि इंसिडेंसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम हैव गॉन डाउन वेरी ड्रास्टिकली। We have been able to fight out criminals on the street just by ushering in an era of technology and predictive policing. I won't deny that. I mean, I've lived in Noida for most part of my life, and I will admit that in the last 10 years, I have felt definitely safer on the streets of Noida than before. Thank you so much. And you should thank the state government also. Yeah, no, I do. They have brought in this kind of change. I do, and I think there is a legitimate fear of the police now that we see from, let's say, an era that where I was younger, because I won't deny I have been followed. I'll give you a very small example. I was DIG range of this area during 14, 15, 16. और उस समय कुछ जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे उसके अंडर पासेस थे जहाँ कारजैकिंग बहुत होती थी, रात के समय लूट बहुत होती थी जी। और एवरीवन टोल्ड मी कि साहब ये तो होगा ही, बिकॉज द एरिया इज सच, ऐसा इलाका है और हम क्राइम सॉल्व कर देंगे, बट क्राइम को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। Then I came and you won't believe, I stood at those underpasses for 2 hours. आज यहाँ अंडरपास पर रात में रुक गए, 2 घंटे देके वहाँ देखे। Then I realized one common factor was that those underpasses were very dark. आदमी जब अंडरपास में आता था तो उसे दिखता ही नहीं था कि सामने कहाँ जाना है, और निकल के भी नहीं समझ में आता था किधर जाना है, बिकॉज इट यूज्ड टू बी वेरी डार्क। करेक्ट। तो हमने क्या किया था कि पहले तो अथॉरिटीज को बोला था कि लाइट लगाई, उनको लगा कि थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोगों ने लोकल उद्योग बंधुओं की सहायता से, उद्यमों की सहायता से लाइन खिंचवाई इलेक्ट्रिसिटी विभाग को कह के, और एक एक बल्ब लटकवाया पहले, कि बाद में वो मास्ट लाइट्स आएंगी, बाद में लाइट्स आएंगी, उसमें टाइम लगेगा, तो एक एक बल्ब लटका दो। तो अंडर पासेस में इस सिरे पर एक बल्ब, उस सिरे पर एक बल्ब, तो जो ऊपर पुलिस वाला भी खड़ा, उसको भी पता है कि नीचे क्या हो रहा है, और जो जा रहा है उसको भी एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी आ गई कि हमें दिख रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और वहां कोई खड़ा नहीं है। और लाइट में बेसिक थिंग, लाइट्स में क्रिमिनल्स भी खड़े इसलिए नहीं होंगे, उन्हें लगेगा हम आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। तो इतनी छोटे से उससे हमारे अंडर पासेस पर लूट रुक गई। इट वॉज वेरी स्मॉल, लेकिन किसी पुलिस वाले ने खड़े होकर ये नहीं देखने की कोशिश की थी कि यहीं क्यों क्राइम होता है। नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करते थे कि अंडर पासेस में बड़े बड़े वो पत्थर छोड़ जाते थे, तो कोई गाड़ी आई, पहिया लड़ गया तो वो वहीं खड़ी हो गई, गाड़ी हटाने के लिए वो खड़े होंगे। हमने अंडर पासेस को क्लियर करवा दिए। बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि आपको क्राइम फाइट करने में आसानी होती है, एंड देयर बाय कम्स इन योर लीडरशिप। फिर वो नीचे के थानेदारों को भी लगा कि ये साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें ऐसे तरीके बता के गई कि हमारे यहाँ क्राइम रुक गया। पर आपके नीचे के जितने भी रहे हैं जूनियर्स या जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको कभी आपने नोटिस किया कि they've had an obvious discomfort reporting to मैडम? बहुत शुरू में towards the beginning of my career there was this kind of reticence, I'll say, because उनके लिए भी it was a very male dominated system. There was not a single lady boss in the field, and they used to feel very uncomfortable reporting to a lady boss. वो सामने आंख मिला के बात करने में भी हिचकते थे, and they had certain that kind of mindset, कि थोड़ा सा embarrassing होगा. But then you have to make your own mark. You have to show them by your action that you are not a woman.
You are a police officer, you are an IPS officer, and they have to report to you as they have been reporting to other IPS officers, number one. Number two, if the force really feels that at a time of crisis on the field, on the ground, if you're not leaving, and if you're not hiding, and if you are not afraid, and if you're not escaping, basically. if you're not escaping, and you are leading them from the front, then they will stick to you like a glue. They will become loyal to you all their life. किसी बुरे वक्त में सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ के नहीं, आपने सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको लीड किया, और उनसे उस सिचुएशन में सबसे आगे रह के आपने गोलियां झेली, तो आप बिलीव करिए कि वो फोर्स आपके प्रति सारी जिंदगी वफादार रहेगा, आपको ट्रू बॉस मानेगा, और वहां से माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी से आपकी ख्याति, आपकी कुख्याति, सुख्याति जो भी है वो सब जगह फैलेगी. Then people will realize that this IPS officer means business. Yeah. And it's no use taking her as a woman. तो मेरे यहाँ कोई रो के भी अपनी बात नहीं कहता है. अगर रोना है तो भाई बाहर जाओ, रो के सब आओ, उसके बाद अपनी बात बताओ. तुम्हारी समस्या का समाधान तो उतना ही होगा जितना एज पर लॉ है या एज पर डिपार्टमेंटल रूल्स है. रोने से समाधान ज्यादा नहीं होगा, ना रोने से समाधान कम नहीं होगा. तो दैट प्लॉय ऑल्सो डज नॉट वर्क ऑन मी. So now they have taken me as an officer only. अब कोई हिचक नहीं, लेडी ऑफिसर नहीं, सिर्फ ऑफिसर. And I have also never behaved as a lady officer. I have done everything on the field, and I'm comfortable with that. That's amazing, because you know that there's usually, as you said, the reticence is real. Once that feeling of goodwill comes, once that wafadari comes, then they start treating you as a small girl. वो आपको सामने दिन भर कुछ नहीं खाया तो केला खा लीजिए, फल खा लीजिए, यू नो, क्योंकि तब इतने सारे यू नो अपॉर्चुनिटीज नहीं होते थे. आपके लिए टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते थे, आपके लिए बहुत जगह रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस तब नहीं होते थे. तो वो आपके कंफर्ट को भी ध्यान रखेंगे. आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट देन यू आर टच्ड बाय दीस स्मॉल जेस्चर्स. ऑफ कोर्स. तो फिर ये समझ में आता है कि अच्छा, ये बैक ऑफ द माइंड में अभी भी छोटे बच्चे जैसे ही डील कर रहा है, तो दे आर फीलिंग प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू. लेकिन वो कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. That is there. It's quite a journey then, from starting off as from a place of what would think is apparent weakness. Now मैं सबको केले खिलवाती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि सबके लिए चाय लाओ, you know, because I am paying back. What the force has given to me through their own love, I'm paying it back now. Very nice. That's so amazing. Ma'am, how do you categorize criminals? You know, मैं ऐसे सोच रही थी कि before any sort of case or any criminal is presented in the court of law, pretty much, you know, the police services are the first judge almost. तो आप कैसे categorize करते हो criminals को कि इनमें reform की कोई उम्मीद नहीं है, ये reform हो सकते हैं, ये you know, इनको फ्रेम किया गया या ये इनोसेंट है? दो चीजें होती हैं. पुलिस वाला जानबूझ के किसी इनोसेंट को तो जेल नहीं भेजता है जी. मेरा एटलीस्ट वर्किंग प्रिंसिपल हमेशा यही रहा है. नो मैटर हाउ हीनियस द क्राइम इज, नो इनोसेंट शुड सफर. नो क्रिमिनल शुड बी गिवन एनी बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो. क्रिमिनल है तो उसे वी हैव टू डील वेरी स्ट्रिक्टली विद दैट. लेकिन what over the years we have learned, and this is how we mature as an officer. Certain categories of criminals होते हैं जिनके पास वो वही क्राइम करते रहते हैं. They are stuck in that vicious cycle of going to jail, getting released, and then again getting involved in that crime, क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ मालूम नहीं है. Number one, there is no other sense of livelihood, source of livelihood for them. तो मजबूरी से इंसान क्रिमिनल बनता है या फिर मजबूरी से जूझने की इनएबिलिटी की वजह से करता है क्राइम? प्रत्येक इंसान के लिए सबसे आसान रास्ता, सबसे इजीली चॉइस हो जाती है, सबसे इजी चॉइस हो जाती है. वो हमारे लिए भी होगी, वो आपके लिए भी होगी, वो उनके लिए भी होगी. नंबर वन. नंबर टू, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और उन्हें यही नहीं मालूम रहता है कि जो मैंने कर दिया वो क्राइम है. Especially towards women, eve teasing हो गई, stalking हो गई, online stalking हो गई, cyber bullying हो गई जी. वो psychological strain में है, hormonal fluctuations में, तो उन्हें समझ में नहीं आता. What we are doing is that this is a kind of crime which we have committed.
कुछ ऐसे होते हैं जो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम कर देते हैं और बाद में उसके लिए वो गिल्टी भी फील करते हैं। बट हम मजबूर होते हैं तो हमें उनको क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम में अशर इन करना ही करना है। तो मेरा अपना मानना है कि किसी भी क्रिमिनल में रिफॉर्म करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और आप अगर अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने जब मिशन शक्ति फेज 1 चलाया था, सरकार ने जब हम लोगों को आदेशित किया था, तो हम लोगों ने ये पाया था कि जो छोटे छोटे पेटी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन ऑन द स्ट्रीट्स होते हैं, अगर हम उसमें उनमें लड़कों की थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें और लड़कों को जो काउंसलिंग करें वो उनके पीयर ग्रुप में, उनके पेरेंट्स के सामने, उनकी अपनी सोसाइटी में खड़ा होकर करें, तो एक पीयर प्रेशर आएगा जिससे कि उनके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। आप बॉन्ड भरवा लीजिए कि मैंने ये गलती की है, मैं मानता हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। या आपने उनके माँ बाप और गांव के बीच में खड़ा करके उनको ये समझाया कि जो तुम्हारा लड़का है यहाँ से निकलता है, लड़कियों के कॉलेज के सामने जाके ये हरकत करता है, तो वो माँ बाप कहेंगे कि ऐसा कल से मत करना, ये तो बड़े गंदा बच्चा है, वी डिडंट रियलाइज दैट ही इज इंडल्जिंग इनटू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो उससे होता क्या है कि आपने एक सोशल प्रेशर क्रिएट करके उस बच्चे को ये समझा दिया कि जो मैं कर रहा हूँ ये क्राइम है और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सड़क पर चलने का हक लड़की को भी उतना ही है जितना लड़के को है जी। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि रेट ऑफ सीनियस ऑफेंसेस हमारे रन डाउन हो गए, क्योंकि आपने उन बच्चों को सुधरने का एक मौका दिया, उनको ये रियलाइजेशन सेट इन किया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इज क्राइम। अगर तुम्हारे संग होगा तो तुम चिल्लाओगे, लड़की के संग हो रहा है तो यू आर नॉट रियलाइजिंग। तो इसका एक प्रेशर पड़ा। जो हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, मेरा अपना मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन करती है जिसमें उनको किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लिंक किया जा सकता है। तो हमको ऐसी मलिन बस्तियों में, स्लम बस्तियों में, जहां बच्चों को कोई रास्ता ही नहीं मालूम रहता है, हम वहां पे अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हम उन बच्चों को प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जोड़ के उनको ये दिखाते हैं कि ये लाइवलीहुड का तरीका सही नहीं है, ये बेटर है। तो आप एक मौका देते हैं। कुछ हार्डकोर होते हैं जो रिपेंटेंट नहीं होते हैं, उनके लिए तो बहुत सख्त पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। Wow, well, this has been such an enlightening session, मैम। मैं आपसे आपका और टाइम नहीं लूंगी। मैं आपसे पर एक जो सवाल हम अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं वो पूछूंगी कि मैम, हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर आवर्स? आप क्या करते हो एकदम रिलैक्स करने के लिए? Oh, being with my family is in itself a very good luxury and pleasurable time. So I read and I paint. I listen to good music. क्या सुनते हैं मैम आप? I am into all, जितना भी, I am a creature of good lyrics, good music, Indian हो, Western हो, everything. Fortunately, I have a good companion in my daughter. मेरे हस्बैंड को भी म्यूजिक का, उनकी चॉइस थोड़ी डिफरेंट रहती है, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर की चॉइस थोड़ी डिफरेंट होती है। आई मोर और लेस align with my daughter's choices. Give me one song that you and your daughter love to listen to. Oh, there are umpteen number of songs, but there are two songs which you should listen. One is the Words by Bozo. Of course. It's a very sweet and well-meaningful song. Agreed. Then there are in that same genre there are so many other songs also. And one is John Lennon ka Imagine. You know? Of Imagine course. a world without boundaries. That is also a beautiful lyric worded song. And these kind of songs keep you in touch with your younger self. There is this verb, and beautiful song is Love is Noise. You should listen to that also. And it sets your perspective into right kind of mold. हिंदी में भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, बट वो थोड़ा सा कम सुनते हैं। आपको खाने में मैम क्या पसंद है? ओ, हम लोग सब अच्छा खाते हैं। वी लव कुकिंग। हाँ। और आप क्या अच्छा बनाती हैं? आपका फेवरेट डिश क्या है जो आप अच्छा बनाती हैं? जो मेरे बच्चे को पसंद हो मैं सब बनाती हूँ। अच्छा। And it is always when we have a free time, I always try to cook something good for her. और पूरी फैमिली फिर बिल्ट के खाती है। एंड जब हम रसोई में घुसते हैं तो एवरीवन चिप्स इन, फिर हर कोई उसमें आएगा, अपना अपना कुछ ना कुछ छौंका तड़का डालने की कोशिश करेगा। बट यस, आई मेक गुड पिज़्ज़ाज़, I make good continental stuff, I make good biryani also, and
मैं दाल भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो तो मतलब आई थिंक इफ यू क्रैक दाल फिर आप कुछ भी बना सकते हो। हाँ यस, दाल इज अ टैलेंट। या तो बहुत बेकार बनती है, बहुत अच्छी बनती है। या तो एकदम फीकी गंदी बनती है। मेरी कोशिश होती थी कि जो बच्चे को खाने में पसंद नहीं है उसको इतना अच्छा बना दिया जाए जी कि वो बच्चा वो खाना सीख जाए। तो दाल को दाल के रूप में मैं नहीं देती हूँ, दाल से मैं बहुत सारी रेसिपीज बना देती हूँ, तो उसे रियलाइज भी नहीं होता है कि वो जो खा रही है वो दाल है। एक ना मैम मैं आपके साथ क्विक गेम खेलूंगी, हाँ जी। जस्ट क्विक आंसर्स कि आप लक्ष्मी मैम क्या सजा सुनाएंगी। बहुत ही ऐसे थोड़े से सिली बट रेलेवेंट इंस्टेंसेस हैं, ठीक है? तो आप बताइए कि मेट्रोज में जो आजकल लोग डांस करते हुए रील बना रहे हैं, उसकी क्या सजा सुनाई देनी चाहिए? उनको जब रील बन जाए तो उसके बाद प्लेटफॉर्म स्टेशन से निकाल के सड़क पे बोलना चाहिए कि 2 घंटे अब यहीं पर नॉन स्टॉप डांस होना चाहिए। Once they are in a physical fit state to dance non-stop for 2 hours, then they will realize कि पुलिसिंग कितना tedious काम है। That is a good suggestion. Fair enough. जो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाते हैं वो भी हाई बीम पे रात को, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा मैलिस है। बहुत बड़ा। उनको मेरा अपना मानना है कि उसके बाद वहीं पे खड़ा करके और पुलिस का टॉर्च लेके पुलिस वाले के संग 2 घंटा खड़ा रखना चाहिए, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि वो जो हाई मास लाइट, हाई बीम लाइट वो दे रहे हैं, वो जब अपनी आंखों पर पड़ती है तो कितनी मेरी सबसे मतलब ये हमारी आज की तारीख मेरी हाई है इसकी वजह से। कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स की जब हमने एनालिसिस की तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग हमारी या लॉन्ग ब्रेन ड्राइविंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सबसे बड़ा कॉज ऑफ इंसिडेंट्स है एक्सीडेंट्स होने का। और पढ़े लिखे लोग थोड़ी सी उसमें टाइम बचाने के लिए ये चीजें करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो किसी दूसरे की जिंदगी नहीं अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए नोएडा पुलिस ने एक बी सेल्फिश कैंपेन भी चलाया है, जिसमें हम लोगों ने लोगों से यही गुजारिश की है कि उन सेकेंड्स के लिए जब आप टेम्प्ट हो कि हम रॉन्ग साइड जाएं, तो अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, सेकेंड्स नहीं जिंदगी बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, कोई किसी की रंग या बॉडी टाइप का अगर मजाक उड़ाए और उसको बॉडी कॉन्शियस करे तो उसको क्या सजा सुनानी चाहिए? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मेरा अपना मानना है सबकी जिंदगी बहुत सुंदर होती है और जो जिस पर्सनल स्पेस में है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है या कास्ट, क्रीड या कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है जी, तो उसके संग भी वैसे ही होना चाहिए, लेकिन अच्छे ढंग से होना चाहिए। ये ज़्यादातर हमारी यंग स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है क्योंकि वो एक प्रेजुडिसेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको 100 बार 500 बार आई एम वेरी सॉरी फॉर सेइंग दिस थिंग और क्या उन्होंने कहा है। जब हम 2 सेकंड में मुंह से बात निकालते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि वो सुनने में हर्टफुल कितनी है जी। लेकिन जब हम वही हर्टफुल लाइन अपनी जिंदगी में 100 बार लिख लेते हैं, देन वी रियलाइज, हमारे सबकॉन्शियस वो सीप इन करेगा, हमको ये रियलाइज करेगा कि हमने कितनी गंदी बात कही थी। तो आप उनसे 100 बार 500 बार लिखवाइए, जो उन्होंने बोला है वर्बैटिम वही लिखवा लीजिए जी, और लिखवा के सजा दीजिए कि अब तुम देखो कि तुमने कितनी गंदी बात कही थी। वेरी गुड, दिस इज अ गुड वन। बारातों से जो रोड ब्लॉक कर लेते हैं पूरी, उनको क्या सजा सुनाई जाए? देखिए, दूल्हे की जिंदगी में ये सबसे अच्छा दिन होता है जिसमें उसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे चमकता और रंगीला दिन है जी। उसकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहिए। बारातियों को ये समझ में आना चाहिए, बारातियों को देखिए आपको मानसिकता समझनी चाहिए, वो क्यों नाचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे हम सफर किए हैं ये भी सफर करने वाला है। बारातियों से जब बारात अंदर चली जाए और दूल्हे का द्वाराचार पूजा हो जाए, उसके बाद बारातियों को पार्किंग ड्यूटी पर 1 घंटा लगा देना चाहिए। वेरी गुड। और आखिरी के पब्लिक स्पेसेस में जो लाउड वॉल्यूम पे ऐसे यूट्यूब देखते हैं और रील्स देखते हैं एकदम लाउड पे या फेस टाइम की कॉल लेते हैं, उनको क्या सजा सुनाई जाए? उनको ये समझाना चाहिए कि आप जितना अच्छा और महंगा फोन लेके चल रहे हैं जी, उससे कंपैटिबल उतने ही अच्छे और महंगे एयरपॉड्स आज की तारीख में उपलब्ध हैं। तो अगर आपको अपना रियल स्टेटस दिखाना है तो प्लीज मेक यूज ऑफ दोज एयरपॉड्स। वेरी वेरी ट्रू। आई थिंक हमारे देश के सारे पापाओं को ये सुनना चाहिए जो पब्लिक स्पेसेस में बैठ के लाउड वॉल्यूम पे एयरप्लेन्स में भी सुन रहे होते हैं। बट थैंक यू मैम, दिस वाज सच अ प्रिविलेज एंड आई विल always remember this day. I will remember meeting you
Thank you so And much. you know, like they say, not all superheroes have capes, but you have a very rock solid uniform, Thank you which so is it's been such a pleasure. It's my pleasure too. Thank you, ma'am. We actually have a little gift for you, Yes, please. so I would like to I'm lucky extend enough. my because आपको cooking बहुत पसंद है. हाँ जी, please. So, Thank you so much. I This is a hope- lovely gift. I hope you enjoy these spices. Thank you so much. This is a very thoughtful gift, and we will cherish them. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.